Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Languages of Computer. In this chapter, you will learn about computer languages at a glance, high-level language, some high-level languages, low-level languages, compiler and assembler. How do you think we communicate with the computer? A computer cannot understand commands that you may give in English or in any other language. It has its own set of instructions for communication, or what we call computer languages. Basically, there are two main categories of computer languages, namely high-level languages and low-level languages. Let us take a brief look at both these type of computer languages. अच्छा देखिए, आपको क्या लगता है हम कंप्यूटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एक्चुअल में ना कंप्यूटर इंग्लिश या कोई भी जो दूसरी लैंग्वेज है ना, उसे वो नहीं समझ सकता. इसके खुद के कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस. तो बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया लैंग्वेजेस को. एक है आपका हाई लेवल लैंग्वेजेस, दूसरा आपका लो लेवल लैंग्वेजेस. Computer languages at a glance. Computer programs can be written in high and low level languages depending on the task and the hardware being used. Let us have a look at the computer languages at a glance. देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपके हाई और लो लेवल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, डिपेंड करते हैं टास्क पे या हार्डवेयर कौन सा यूज़ हो रहा है, राइट? तो देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपके आते हैं फॉर्ट्रन, सी एंड पास्कल, जबकि आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस में है आपके assembly language, machine language and hardware. Okay, so high level languages. High level languages are very convenient for an operator to instruct a computer. These group of languages use simple English language words that are converted into machine language by a compiler or an interpreter. अब ये ना काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेजेस काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं ऑपरेटर के लिए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो ये जो ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस होते हैं जो कि सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वो फिर मशीन लैंग्वेज में आपकी कन्वर्ट हो जाती है किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा, राइट? Advantages of high level languages. Number 1, commands are written in simple English language. Number 2, knowledge of hardware and binary arithmetic is not required. Number 3, programs are not restricted to a particular machine only. And number 4, programs require less time and effort in creation. अच्छा, high level languages की advantages क्या हैं? सबसे पहले तो जो commands होती हैं वो simple English language में लिखी होती है, ओके? जो knowledge होती है हार्डवेयर की और जो binary arithmetic है उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, और प्रोग्राम जो है वो पर्टिकुलर मशीन के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते. एंड सबसे बड़ी बात, इनको बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है क्रिएशन में, राइट? Disadvantages of high level languages. Number 1, these languages are not understood by computer directly, so the execution of program takes more time. Number 2, the compiler consumes extra memory for the translation process. अब देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो ये है कि इसको कंप्यूटर जो है डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इसीलिए एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का उसमें ज़्यादा टाइम लगता है. दूसरी चीज़, जो कंपाइलर है वो एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करता है इस ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए, ओके? जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज प्लान कैलकुल, क्रिएटेड बाय कॉनराड ज़्यूस बिटवीन 1942 एंड 1945. तो देखिए पहली जो आपकी HL थी, LL यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज, वो थी आपकी प्लान कैलकुल. Some high level languages. तो चलिए कुछ high level languages के बारे में पढ़ते हैं. Number 1, basic. Basic stands for beginners all-purpose symbolic instruction code. It was developed by John Kemeny and Thomas Kurtz in early 1960s. Basic जो है आपकी high level language है, इसको डेवलप किया था जॉन कैमिनी एंड थॉमस कुर्ट्स ने 1960s में, अर्ली 1960s में, ओके? Number 2, COBOL. COBOL stands for Common Business Oriented Language. It was developed by Grace Hooper to cater to the requirements of the business world and perform tasks like developing and processing accounts, payrolls and stock management. इसको डेवलप किया था ग्रेस होपर ने, टू केटर टू द रिक्वायरमेंट जो बिजनेस वर्ल्ड के होते हैं और टास्क परफॉर्म करने के लिए डेवलपिंग है, प्रोसेसिंग है अकाउंट्स का, पेरोल्स एंड स्टॉक मैनेजमेंट. Number 3, Pascal. Pascal is a structured programming language used for business and scientific purpose. It is named after the French mathematician Blaise Pascal, who made the Pascal's adding machine. It was originally developed by Nicholas Wirth. पास्कल आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको कि बिजनेस और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. इसका नाम जो है वो एक आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेजी पास्कल, उनके नाम पे रखा गया है, जिन्होंने
बनाया था पास्कल्स एडिंग मशीन, और वैसे ओरिजिनली पास्कल को डेवलप किया था निकोलस वर्थ ने. Fortran. Fortran stands for Familiar Translator. It is designed to simplify and speed up the complex scientific applications. It was developed by John Backus. आप देखिए जो Fortran है इसको डिज़ाइन किया गया था कि जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशंस है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, और इसको डेवलप किया था जॉन बैकस ने. Logo stands for Language of Graphics Oriented. It uses turtle graphic to teach logical analysis to children. It was developed by Seymour Papert. अच्छा, आपका जो लोगो है इसमें आपका टोटल ग्राफिक यूज होता है जो कि लॉजिकल एनालिसिस बच्चों को सिखाता है. उसको डेवलप किया था सेमोर पैपरेट ने. Just for your information, in 1842, Ada Lovelace wrote the world's first computer program. अच्छा, वर्ल्ड का पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो 1842 में लिखा गया था बाय एडा लवलेस. ओके. 6. C is a programming language used often to design system software. It was developed in 1972 by Dennis Ritchie at AT&T Bell Telephone Laboratories. ये C आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूजुअली इसको यूज़ किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए, और इसको डेवलप किया गया था 1972 बाय डेनिस रिच्ची. ओके. नंबर 7, C++. C++ is an object-oriented language popularly used for developing system software. It was developed by Zarne Strop in 1983 at AT&T Bell Labs to enhance workability of C language. अब C++ आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जो कि पॉपुलरली यूज़ किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए. इसको डेवलप किया गया था जार्ने स्ट्रॉप के द्वारा 1983 में, और ये डिज़ाइन किया गया था कि जो वर्क एबिलिटी है सी लैंग्वेज की उसको एनहांस करने के लिए. राइट. 8. Visual C++. Visual C++ is a programming environment created by Microsoft. It is used to create computer applications for the Microsoft Windows family of operating system. Visual C++ आपका प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था. ओके. और इसको यूज़ किया गया था टू क्रिएट कंप्यूटर एप्लीकेशंस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फैमिली के लिए ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट. 9. C hashtag. C hashtag is pronounced as C#. It is a fully object-oriented language like Java and is a first component-oriented language. It was developed in 2000 by Anders Hesselsberg. C आपका हैशटैग, एक्चुअल में इसको हैशटैग नहीं प्रोनाउंस किया जाता, C# प्रोनाउंस किया जाता है. ओके. ये आपका फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा की तरह, और पहला कंपोनेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. इसको 2000 में डेवलप किया गया था बाय एंडर्स हेजलबर्ग. Number 10, Visual Basic or VB. Visual Basic is an object-oriented programming language designed and developed by Microsoft. It provides many different tools for creating the visual environment. Example, Windows. ये आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने. ओके. ये बहुत सारे डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है विजुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए. एग्जाम्पल है आपका विंडोज़. Number 11, Java. Java is an advanced programming language that derives and is ruled by C and C++. It was introduced in 1995 by Sun Microsystems and was developed by James Gosling. ये आपका एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जिसको डिराइव किया गया था एंड रूल किया जाता है बाय C और C++. ये 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सन माइक्रोसिस्टम्स एंड इसको डेवलप किया गया था जेम्स गूसलिंग के द्वारा. Number 12, ASP/ASP.NET. ASP stands for Active Server Pages. It is a server-side scripting environment developed by Microsoft. It allows a Microsoft server to process a programming language. अब इसको भी जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डेवलप किया गया था, और ये क्या करता है, ये माइक्रोसॉफ्ट सर्वर को अलाउ करता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना प्रोसेस करे. Number 13, .NET. .NET is a powerful development environment and framework for developers to develop the work XML. It was developed by Microsoft. अब .NET जो है इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही डेवलप किया था, और एक आपका काफ़ी पावरफुल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और फ्रेमवर्क है डेवलपर्स के लिए जिससे कि वो डेवलप करते हैं वर्क XML. ओके. Number 14, Python.
Python is a general purpose and very popular programming language. It has high level data structure and effective approach to object oriented programming. It was developed by Python Software Foundation. Python को डेवलप किया गया था Python Software Foundation द्वारा और ये आपकी जनरल पर्पस और बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इसमें हाई लेवल आपका डेटा स्ट्रक्चर है और इफेक्टिव अप्रोच है टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. लो लेवल लैंग्वेजेस. Low-level languages are created according to the internal system of computer. Computer cannot understand instructions given in high-level language or in English. It can only understand and execute instructions given in the form of machine language, that is language of 0 and 1. There are two types of low-level languages, machine language and assembly language. अच्छा देखिए, अब जो low-level languages हैं आपकी वो create की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर. ओके, तो कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को नहीं समझ सकता जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में दिए जाते हैं या जो इंग्लिश में दिए जाते हैं. तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड करता है 0 and 1 की लैंग्वेज में. ओके, तो आपके दो तरह के लो लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसमें आपका मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. ओके, नंबर 1, मशीन लैंग्वेज. Computer understands the sequence of zeros and ones where 0 is off and 1 is on. The language that uses combinations of 0 and 1 is called machine language. Machine language was used in the first generation computers, but writing instructions in this language was very difficult task. The following table shows equivalent of human language instructions in machine language. देखिए जो कंप्यूटर है ना वो zeros and ones के सीक्वेंस को समझता है. 0 का मतलब होता है ऑफ एंड 1 का मतलब होता है ऑन. तो जो लैंग्वेज जिसमें ये 0 and 1 की कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है वो आपकी होती है मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किया गया था, बट जो राइटिंग इंस्ट्रक्शंस थे ना इस लैंग्वेज में काफ़ी डिफिकल्ट थे. अच्छा देखिए, जैसे ये टेबल देखिए, ह्यूमन लैंग्वेज अगर 1 है तो मशीन लैंग्वेज का मतलब होता है 0 0 1. ह्यूमन लैंग्वेज में अगर 2 है दैट मीन्स 0 1 0. 3 का मतलब है 0 1 1. 4 का मतलब है 1 0 0 and 5 का मतलब होता है 1 0 1. ओके, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन 0 and 1 आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. आपके 0 and जो 1 है इन्हें बाइनरी डिजिट्स भी कहा जाता है. एडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. नंबर 1, देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर फॉर मशीन लैंग्वेज. नंबर 2, इट मेक्स फास्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द कंप्यूटर. अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे पहले तो ट्रांसलेटर की ज़रूरत ही नहीं होती है. ओके, और ये बहुत ही आपका फास्ट और एफिशिएंट यूज़ इस कंप्यूटर का इसमें होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ मशीन लैंग्वेज. नंबर 1, ऑल ऑपरेशन कोड्स हैव टू बी रिमेंबर्ड. नंबर 2, ऑल मेमोरी एड्रेसेस हैव टू बी रिमेंबर्ड. नंबर 3, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इज़ वेरी डिफिकल्ट इन मशीन लैंग्वेज. अच्छा देखिए, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे पहली बात तो जितने भी ऑपरेशन कोड्स हैं उनको रिमेंबर करना पड़ता है. जितने जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उनको भी रिमेंबर करना पड़ता है. किसी भी एरर को फाइंड करना, उसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपकी मशीन लैंग्वेज में, राइट? असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट. Mnemonic codes and symbolic addresses are used in assembly language. Generally, assembly programs are written in modules and put together for the final run. The computer manufacturers provide different software to convert assembly language into machine language. Assembly language was used in second generation computers. Time required to write these assembly language programs was much higher than these programs had limited access as they were specific for different processors. अच्छा देखिए, आपकी जो असेंबली लैंग्वेज है ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है. इसमें आपके निमोनिक कोड्स हैं या सिंबॉलिक एड्रेस को यूज़ किया जाता है, राइट? तो जनरली आपके जो असेंबली प्रोग्राम्स होते हैं वो मॉड्यूल्स में लिखे जाते हैं और फिर साथ में रखे जाते हैं फाइनल रन के लिए. तो जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करें. असेंबली लैंग्वेज जो है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ किए गए थे. अब टाइम जो रिक्वायर्ड था, मतलब टाइम की जो ज़रूरत थी इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को लिखने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा था. ओके, एडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज. नंबर 1, फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स कैन बी डन without any difficulty. Number 2, it can be modified easily. Number 3, it is easier to understand and use as compared to machine language. देखिए एडवांटेजेस क्या है कि कोई भी एरर को फाइंड और रिमूव किया जा सकता था बिना डिफिकल्टी के. मॉडिफाई करना भी इनको ईजी था और इसको समझना काफ़ी आसान था एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज. डिसएडवांटेजेस ऑफ असेंबली लैंग्वेज. नंबर 1, अब
program written for one computer will not run on another computer. And number 2, unlike machine language, it is also machine dependent. अब देखिए एडवांटेजेस के साथ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो ये है कि जैसे कि एक प्रोग्राम एक कंप्यूटर के लिए लिखा गया है तो वो दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा. एंड दूसरी कि मशीन लैंग्वेज की तरह आपकी असेंबली लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है. ओके, कंपाइलर एंड assembler. As you know that high level language is machine dependent and assembly language, though it is machine dependent, yet mnemonics that are being used to represent instructions are not directly understandable by machine. Hence, to make the machine understand the instructions provided by both the languages, compiler and assembler are required to convert these instructions into machine language. The program written by the programmer in high-level language and assembly language are called source program, and the program generated by the compiler and assembler after translation are called object program. The software set of programs that reads a program written in high-level language and translates it into an equivalent program in machine language is called compiler. देखिए, आप जैसे आपको पता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है ना, और जो असेंबली लैंग्वेज है हालांकि ये मशीन डिपेंडेंट है, बट निमोनिक्स जो उसमें यूज़ किए जाते थे इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करने के लिए वो डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं थी बाय मशीन. तो इसीलिए मशीन जो है इन इंस्ट्रक्शंस को समझ सके दोनों लैंग्वेजेस को, जो इसके लिए कंपाइलर और असेंबलर की ज़रूरत थी जो इन इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. तो जो प्रोग्राम आपके लिखे जाते हैं बाय द प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में और असेंबली लैंग्वेज में उन्हें कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम. एंड जो प्रोग्राम आपका कंपाइलर जनरेट करता है एंड असेंबलर आफ्टर ट्रांसलेशन उसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को रीड करते हैं जो कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, उसे कहा जाता है कंपाइलर. सी, सोर्स प्रोग्राम दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज, देन कंपाइलर उसको क्या करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी आपका मशीन लैंग्वेज में चेंज. The software set of programs that reads a program written in assembly language and translates it into an equivalent program in machine language is called assembler. अच्छा, अब ये जो सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्राम को रीड करता है जो कि आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं और फिर वो ट्रांसलेट करता है इक्विवेलेंट प्रोग्राम में इन मशीन लैंग्वेज, उसे कहा जाता है असेंबलर. ओके, सो देखिए, सोर्स प्रोग्राम इज असेंबली लैंग्वेज, देन असेंबलर क्या करता है मशीन लैंग्वेज में से कन्वर्ट करता है. ओके, summing up, to communicate with computer we need computer languages. Computer languages are of two types, high level languages and low level languages. High level languages are very convenient for an operator to instruct the computer. Pascal is a structured programming language used for business and scientific purposes. Machine language uses combinations of 0 and 1. Compiler and assembler are used to convert the instructions into machine language. चिल्ड्रन, आई होप आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में उनके बीच का डिफरेंस पता चला होगा. एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.